Well, we are all aware about the current situation due to COVID-19, and as we are all trying to save ourselves and our families from the deadly virus, it's also important to recognize that there are nations, underdeveloping and developing nations, that are in need of assistance, be it economical, supply of medical supplies, food, water, and also knowledge to face this COVID crisis. And to help in this COVID situation, apart from the governments, non-government organizations, non-profit organizations play a vital role in providing assistance to the people in need of it. And with us today, we are here with the Director of Khalsa AIDS Asia Pacific Region, Mr. Amarpreet Singh. Thank you, Mr. Amarpreet, for giving us your time. Yeah, thank you very much for being me here. Yeah. So, Khalsa Aid is an international organization, non-government organization, which is with the aim to provide humanitarian aid not only in disaster-hit areas but also in civil conflict zones. Mr. Amarpreet Singh, tell us briefly about, even though we are aware about the work of Khalsa AIDS across the globe, tell us briefly what is the purpose of Khalsa AIDS, how it was formed, and especially what's its mission in Kashmir. Yeah, well, our mission is only one line that recognize the whole human race as one. Like our Sikh principles, it's Sarbat Dhapala, so well-being of all. So we are working on that principle. So in Kashmir, we are here to serve the local people with the oxygen, crisis everywhere, but we are helping out to provide oxygen concentrators to everyone. Yeah. So far, how has it been? What would you estimate the funds, the assistance that you have provided to the hospitals or NGOs here? So, हमने यहाँ पे start किया with few oxygen concentrators, around 50 to 60 concentrators. So, just हमारा idea यही था कि लोगों के patients को घर में पहुँचाया जाए, because हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए थे, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं अवेलेबल थे, जो हमने बाकी पार्ट्स में एक्सपीरियंस किया. सो उसकी वजह से हमने एक जो सर्विस शुरू की कि डोर स्टेप पे प्रोवाइड करना, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग बाहर ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते हैं. सो ये हमारा एजेंडा था कि उनको घर पे ही सारी फैसिलिटीज़ मिलें. सो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये इसकी शुरुआत की. मिस्टर अमरप्रीत, crowdfunding is the main source for NGOs, right? You agree with it? And when it comes to Kashmir, there are several NGOs working and doing an amazing job, we must admit. But at times, people are concerned about the funds they are providing to these NGOs. They are kind of concerned about whether these funds are being used appropriately or wasted also. Do you think this concern is legit? क्या ये important concern है उनका, और क्या आपको लगता है कि NGOs कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं ये फंड्स? और व्हाट अबाउट खालसा एड्स, वो कैसे मैनेज कर लेती है इन फंड्स को? देखिए, कंसर्न की बात करो तो कंसर्न बिल्कुल सही है, लोगों का कंसर्न सही है, क्योंकि लोग गवर्नमेंट को छोड़ के NGOs के ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि NGOs को पैसे दें और सही जगह पे पहुँचाएँ. सो अगर उनका कंसर्न है कि फंड्स कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ पे जाते हैं, सो आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट, और उनको चाहिए भी कि वो वॉच रखें. ट्रांसपेरेंसी मस्ट है इन द NGO सेक्टर्स. सो इस प्रोसेस को हमने समझते हुए काफ़ी सालों से अपने जो अकाउंट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं. हम ऐसे मैनेज करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग आती है उसी प्रोजेक्ट में वो फंडिंग लगे, तो हमने उसका सारा जो सिस्टम है, प्रोसीजर्स हैं, वो बना रखे हैं. सो आई थिंक जो भी NGOs, जो स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने इस कोविड के मिशन में NGO सेटअप किए हैं या कुछ साल ही हुए हैं NGO सेटअप करते, सो हमारी कोशिश भी होती है कि हम उनको सपोर्ट दें. ये नहीं कि फाइनेंशियली सपोर्ट दें या कोई सामान की सपोर्ट देनी है, हम उनके साथ नॉलेज भी शेयर करते हैं कि यार इस पॉइंट से सेफ रह के आपने काम करना है, क्योंकि NGOs बहुत जल्दी टारगेट होती है. हमको भी टारगेट किया जाता था, हम वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं तब भी हमें टारगेट किया जाता है. तो हम दूसरे NGOs के साथ ये भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कहाँ से बचना है आपने, कैसे काम करना है, कैसे ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कैसे लॉज को मेंटेन करके आगे लीगैलिटीज़ फॉलो करनी है. सो आई थिंक जो आपका कंसर्न है वो ज़रूरी है लोगों को भी कि वो वॉच रखें, जिसके ऊपर क्वेश्चन करें कि फंडिंग कहाँ कैसे यूज़ कर रहे हो आप लोग. दिस क्वेश्चन जस्ट राइजेस अप कि as we know, international aid is the need of the hour in this
current situation of pandemic. And when it comes to international rules, do you think there is a need to upgrade those rules so that this transaction from providing supplies and assistance in other countries to the people who need it goes smoothly? इम्प्रूवमेंट तो देखो इंसान को सभी जगह कुछ ना कुछ, जब आप आगे आगे बढ़ते रहते हो आपको लगता है कि ये भी ऐसे सेटलमेंट होना चाहिए, ये यहाँ पे इम्प्रूव होना चाहिए. और डेफिनेटली इस पार्ट में अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन की बात करें तो मैं इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में, हर एक सेक्टर में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं. एनजीओ सेक्टर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ फंडिंग लेके और गलत काम में यूज़ करते हैं. सो उस वजह से जो लॉज बनाए रखे हैं, आई थिंक वो इस वक्त आके, कोविड के वक्त आके हमें मुश्किल दे रहे हैं कि यार हमें जेन्युइनली फंड्स लगाने हैं, जेन्युइनली डोनेशंस एक्सेप्ट करनी है, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि वो लीगैलिटीज़ ही इतनी हो चुकी हैं. सो कुछ पार्ट पे आके लगता भी है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ पार्ट पे लगता भी है ये जो स्ट्रिक्टनेस है ये ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि जो गलत लोग हैं सोसाइटी में वो बचे रहे, मतलब इससे. बिल्कुल सही बात कही आपने. सर, जो कंट्रोवर्सीज़ की आपने बात की, जब आपने काम किया प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के लिए दिल्ली बॉर्डर्स पे, तब काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा आपका साथ उन फार्मर्स के साथ. तो अकॉर्डिंगली आई एम अज्यूमिंग दैट व्हेन यू प्रोवाइडेड एड इन सीरिया एंड येमेन, वहाँ पर भी कुछ मुश्किलात आए होंगे. हाउ डज खालसा एड मैनेज these situations? How do you tackle these controversies, and what would you suggest for the NGOs in Kashmir as well? देखिए, ऐसा होता है, जैसे मैंने अभी भी बताया है कि जब भी आप काम करते हो सोसाइटी के लिए, कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको मतलब जो लोग हैं ना, सामने पब्लिक है, वो जिनके दिमाग में बस यही है कि कुछ नेगेटिव ढूंढना है, वो आपको जज करते हैं कि यार हाँ यार ये फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए इनको इस डायरेक्शन में उलझा दो, है ना. आप कश्मीर में आए, आप इस डायरेक्शन में आपको उलझा दो. आप पंजाब में काम कर रहे हो, उस डायरेक्शन में उलझा दो. आप सीरिया गए हो, आप इराक गए हो, आप येमन गए हो, आपको उस पॉइंट के ऊपर टारगेट करना शुरू कर देते हैं. लेकिन मेरी सुजेशन यही है कि ये लोग आपको सोसाइटी में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे. ये नहीं कि आज हम बात कर लें और कल से उनकी सोच चेंज हो जाएगी, नहीं. वो इसी काम के लिए बैठे हैं कि आपको फिंगर आउट कैसे करना है. तो एनजीओज़ को मेरी यही सुजेशन है, जैसे जैसे आपका जो फोकस है ना, आप काम करते जाओ, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए. आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है. ठीक है, सोशली कई बार बहुत फ़र्क पड़ता है. जब फार्मर प्रोटेस्ट की बात आपने की है, लास्ट 6 महीने से हम लोग वहाँ पे बैठे हैं. जो हमारी तरफ से जो फैसिलिटीज़ हो सकती थी, हमारे 200-300 वॉलंटियर वहाँ पे लगे हुए हैं, आज की डेट पे भी लगे हुए हैं. लेकिन उस टाइम हमको जज किया गया कि यार आप ये फार्मर्स की, किसानों की मदद क्यों कर रहे हैं. हमें आतंकवादी तक किया गया. हमारे नेशनल मीडिया में हमें टारगेट किया गया कि यार ये फंडिंग आपको कहाँ से आ रही है, आपको फंडिंग खालिस्तानियों से आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यू नो, मतलब वो प्रिटेंड किया गया हमें. लेकिन द थिंग इज़ कि अगर हमारा फोकस क्लियर है, हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारे अकाउंट्स क्लियर हैं, ट्रांसपेरेंसी है, तो ये बातें आपको फ़र्क नहीं पड़ती. एक टाइम आएगा, लोग 1 दिन बोलेंगे, 5 दिन बोलेंगे, 10 दिन बोलेंगे, लेकिन काम चलता जा रहा है. वो नेशनल मीडिया ने बात उठाई, लेकिन वो ठंडे पड़ गए. उसके बाद हमने लीगली उनके ऊपर एक्शन लिया. अब वो आर्टिकल उन्होंने रिमूव करना पड़ा उसको. सो मतलब अगर आप सच्चे हो, आपका एजेंडा क्लियर है, तो ये बातें इग्नोर करनी पड़ेंगी आप. ठीक. बारे में बताइए थोड़ा कि आपकी ये जर्नी कैसे रही. पहले आप डायरेक्टर इंडिया में थे का, तो आपकी ये जर्नी कैसे रही फ्रॉम बीइंग द डायरेक्टर ऑफ इंडिया टूवर्ड्स द एशिया पैसिफिक डायरेक्टर सो फार, और आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की? टेल अस अबाउट इट प्लीज. जर्नी मतलब लाइक यू नो, आई हैव अ पैशन कि यार कुछ करना है कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करें, कुछ करना चाहिए. सो मैं कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर रहा था पंजाब में. सो एट दैट टाइम मेरे पास ये मतलब वॉलंटियर करना शुरू किया खालसाइड के साथ. तब खालसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड भी नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में पता था कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. सो एट दैट टाइम मेरा मन में आया कि नहीं यार, कुछ अपना वीकेंड पे टाइम निकालें, कुछ सोसाइटी के लिए करें. तो ऐसे ऐसे शुरुआत हुई. उसके बाद बस एज अ वॉलंटियर करते करते यहाँ पे पहुँच गए हैं, और अब खालसाइड को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इंडिया में रजिस्टर्ड हुए. तो 8-9 साल से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं. और अभी भगवान की कृपा से सारा कुछ भी राइट नाउ वी हैव 25,000 वॉलंटियर्स टीम इन इंडिया. सो अच्छा लगता है. और अभी जो यूथ, जो यंगस्टर्स अभी नए ज्वाइन होते हैं, तो उनको जब जर्नी बताते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होती है. अब
अब जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें, हमारे वॉलंटियर्स जो थे जिन्होंने फ्लड्स में काम किया, आज वो गगन जम्मू कश्मीर में चैप्टर लीड कर रहे हैं, अमरजीत भाई यहाँ पे लीड कर रहे हैं. सो मतलब ऐसे मतलब वॉलंटियर्स करते करते, बातें समझते समझते ग्राउंड रियलिटी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनजीओ सेक्टर में. ये नहीं कि आप ऑफिस में बैठ के आप प्लान बना लो तो सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा. सो इस वजह से जैसे हमने शुरुआत की वैसे और सारे हमारे लोग भाई सारे चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और लीड करते जा रहे हैं. तो अभी कुछ अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं अभी करंटली, उसके बारे में बताइए अपार्ट फ्रॉम कश्मीर. अभी हमारा जो सबसे बड़ा तो कोविड रिलीफ का ही काम चल रहा है. सो राइट नाउ हमने 26 स्टेट्स इंडिया की कवर किए हैं विद द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स. सो 2500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पैन इंडिया. सो आगे भी हम जो कोविड केयर्स हैं उनको सपोर्ट दे रहे हैं. 100 से ज़्यादा कोविड केयर्स को हम सपोर्ट दे चुके हैं, कॉन्टीन्यूसली जारी है. सो इसके अलावा फार्मर प्रोटेस्ट में काम चल रहा है, एजुकेशन पे काम चल रहा है, वेलफेयर पे काम चल रहा है. जम्मू में एक हॉस्पिटल चल रहा है, गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल. सो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो करंटली जो परमानेंट खालसा एड के प्रोजेक्ट्स हैं. लेकिन जो डिज़ास्टर जोन्स में या कॉन्फ्लिक्ट में जो काम चलते हैं वो रेगुलरली टेम्परेरी बेसिस पे चलते रहते हैं. Well, at the end, I would like to ask Mr. Amarpreet Singh, कोई ऐसी एडवाइस या समथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू द एनजीओज ऑफ कश्मीर सो दैट दे कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क दे हैव बीन डूइंग सो फार. सजेशन यही है कि जो लोग आपको जज करके, जो लोग आपको जानबूझ के पोक करके सिर्फ यही चाहते हैं कि आप अपना अच्छा काम रोक दो, आप उसको इग्नोर कीजिए. आप मतलब इस पे विश्वास कीजिए कि आपका अगर एजेंडा क्लियर है, आपका फोकस क्लियर है कि आपने सोसाइटी को सर्व करना है. सो क्योंकि बहुत एनजीओज, मैं ये सजेशन इसलिए दे रहा हूँ, बहुत एनजीओज ना बहुत हर्ट होके रुक जाती हैं कि यार मैं अच्छा भी कर रहा हूँ लेकिन लोग मुझे गालियाँ निकाल रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे बारे में फेक न्यूज़ चल रही हैं. सो इस वजह से बहुत एनजीओज रुक जाती हैं. बहुत एनजीओज के लोग मतलब टूट जाते हैं उनसे कि यार ये अच्छा काम नहीं कर रहे, ये बुरा काम कर रहे हैं. सो इस वजह से इग्नोरेंस, आई थिंक पेशेंस एंड इग्नोरेंस, ये मेरी सजेशन है एनजीओज को कि ये रख के चलें, एजेंडा क्लियर रखें तो आगे बढ़ें. पेशेंट रहे, इग्नोर करें सारे क्रिटिसिज्म को. दैट्स द थिंग. Well, thank you very much for your precious time, Mr. Amarpreet Singh. Kashmir wishes you the best and Khalsa also the best. And that's it for this time. Keep supporting NGOs, support each other, and most importantly, mask up, stay safe, stay away.